Hello बच्चों, let's read the question first. In hexagonal system of crystals, a frequently encountered arrangement of atom is described as a हेक्सागोनल प्रिज्म। तो एक हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर हमने एटम्स को इस तरह से अरेंज किया है कि वो एक हेक्सागोनल प्रिज्म फॉर्म करे हैं। Here the top and bottom of the cell are regular hexagon. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं हेक्सागोनल सिस्टम की, तो उसका जो टॉप एंड बॉटम होता है वो एक रेगुलर हेक्सागन होता है। आपको स्ट्रक्चर याद होगा। एंड थ्री एटम्स आर सैंडविच्ड इन बिटवीन, और इन दोनों लेयर के बीच में तीन एटम्स को सैंडविच की तरह रखा जाता है। A space filling model of this structure called hexagonal close packed. तो इसी तरह के स्ट्रक्चर को हम HCP कहते हैं। is constituted of a sphere on flat surface surrounded in same plane by six identical sphere as closely as possible. यानी कि एक लेयर की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर सिक्स आइडेंटिकल स्फीयर्स को एक ही प्लेन में इस तरह से रखा जाता है, क्लोजली पैक करके रखा जाता है, राइट। एंड थ्री स्फीयर्स देन प्लेस्ड ओवर फर्स्ट लेयर। तो इस फर्स्ट लेयर के ऊपर थ्री स्फीयर्स को और रखा जाता है सो दैट दे टच ईच अदर एंड रिप्रेजेंट द सेकेंड लेयर। यानी कि फर्स्ट लेयर में सिक्स एटम है, सिक्स स्फीयर है, क्लोजली पैक्ड है। उसके बाद सेकेंड लेयर में सिर्फ थ्री आपके पास स्फीयर होंगे। Each of these three sphere touch the three sphere of the bottom layer. अब आपके पास एक और बॉटम लेयर है। नाउ फाइनली द सेकेंड लेयर इज कवर्ड विद द थर्ड लेयर दैट इज आइडेंटिकल टू द बॉटम लेयर इन रिलेटिव पोजीशन। अज्यूम रेडियस ऑफ एवरी स्फीयर टू बी आर। जितने भी स्फीयर्स है उनकी रेडियस को आपने आर समझ के चलना है। द वॉल्यूम ऑफ द HCP यूनिट सेल इज, आपको जवाब देना है कि जो वॉल्यूम है ऐसे HCP की क्या रहने वाली है। दैट इज ऑप्शन A 24 अंडर रूट आर क्यूब, B 16 अंडर रूट r cube, C 12 under root 2 r cube, and option D 64 by 3 under root 3 r cube. When talking about key point, so this question is being asked from hexagonal system, or I can say HCP, right, from the chapter solid states class 12th. Now in order to find the volume of HCP, we have a formula, right? That is area of base into height, right? अब ये जो area of base है इसको understand करेंगे with the help of the diagram. Okay, let me draw HCP for you. So these are the centers of the spheres placed close to each other. Okay, तो ये एक hexagonal structure बनाते हैं। Now understand this. These are these three atoms that we place in between the layers. This is layer 1 and this is layer 2. Now talking about the third one. Like this. Okay. Now understand area of the base. See, what is the height? This is going to be the height. Here it is the height. You have to calculate it. And now area of base. If I assume this base, this will be the base, okay? And these are the center of the atoms or the spheres, right? So यहाँ पे जब आप इन्हें join करोगे, you will be seeing they are six equilateral triangle. और अगर मैं इस equilateral triangle का area निकाल लूं, then I have to multiply it by 6. ओके, एंड तो मेरा ये एरिया ऑफ बेस आ जाएगा। यानी कि इसकी जगह लिख सकते हैं 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट, इंटू हाइट। Now the area of equilateral triangle, we better know that is 6 into under root 3 by 4a square. What is a? Is the edge, okay? And now
We will be putting the value later. And now we are going to find out the height. Okay. Let's consider this is your layer 1. This is the layer 2, and again layer 3 is repeating. Okay. So here you can see this is the hexagon. Okay. And these are the 3 spheres placed over it. So what we can do, let's say these are the equilateral triangles. If I join all the center of the sphere, तो यहाँ 6 आपके पास equilateral triangles बन सकते हैं. Okay, let me draw one. Say this. Okay, इसका नाम होगा, let's say it is M, N and this is R. Okay, तो आपको पता है ना कि ये एक रेडियस है. लेट्स से यहाँ पे एस एक पॉइंट रख लेते हैं. ये रेडियस कितना होगा, आर, जो कि हमें गिवन वैल्यू है, और ये भी आपस में ज्वाइन कर रहा है, तो आर एंड आर विल बिकम 2r. राइट, यानी कि हमारे पास बेस तो पता हमें लग गया है. नाउ टॉकिंग अबाउट, अब क्योंकि ये जो आपको वॉइड्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इन वॉइड्स के ऊपर ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे ये 3 स्फीयर्स को हम प्लेस करते हैं. राइट, तो ये जो आपका स्फीयर है, लेट्स से ये यहाँ आके प्लेस होगा. राइट, तो ये जो पॉइंट है ये आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड देन I can join this also. Say this is the point P and this is the point Q. Right? तो बेसिकली अभी हमें ये एरिया निकालना है. तो आपके पास क्या होगा, ये जो आपकी हाइट है ये हाफ हाइट है, और अगर इतना ही हम ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, कंप्लीट हाइट मिल जाएगी. तो हमें वैल्यू ऑफ h को ही तो निकालना है. राइट, सो यहां से हमें बेस पता चल जा रहा है. बेस क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी 2r, इक्वल टू 2r लिख सकते हैं. राइट, और यहाँ जो आर एस की वैल्यू है, दिस इज आर एस. इसकी वैल्यू कितना गिवन है बच्चा, दैट इज आर. तो जो हमारा एम एन आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वी कैन इजीली सी एम, दिस इज एम एन आर, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इसको हम लिख सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके अंदर आपका जो एंगल है P Q P R S, दैट इज P R S. ये जो एंगल है ये कितना होगा, क्योंकि इक्विलेटर ये पूरा एंगल 60 डिग्री होता है. राइट, तो ये इसका भी हाफ है, तो आई कैन राइट इट लाइक एंगल P R S दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री. राइट, तो इस एंगल के अंदर जब हम देखेंगे इन P R S, cos of 30 degree will be equal to R S by P R. राइट, और इसकी वैल्यू जो 30 डिग्री की वैल्यू होती है, दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट 3/2. तो यहां से मेरी पी आर की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी पी आर इज इक्वल टू 2/√3 आर एस, और I can write the value of RS here, and this will be equal to 2/√3 R, क्योंकि RS का वैल्यू कितना है, R. Now let's see the angle in the right angle. अब आपको एक right angle दिखाई देगा, that is going to be PQR. In PQR right angle, कहाँ है PQR? This is say P, this is Q and this is R. Okay, so this blue color triangle is PQR right angle, और इसके अंदर हम PQ की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वल टू QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर. राइट, एंड यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट कैन बी इक्वल टू 2√2/3R. राइट, तो ये जो इतना वैल्यू है यहां से लेके यहां तक,
ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमें तो पूरा वैल्यू चाहिए यहां से लेके यहां तक, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2, यानी कि हाइट ऑफ, आई कैन राइट हाइट ऑफ hexagon is going to be 2pq. इसका मतलब 2 इंटू 2√2/3r, राइट। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू √2/3r। ओके, तो यहां तक क्लियर है। तो हमें यहां से हाइट पता चल गई है और हमने पहले से कैलकुलेट किया था एरिया को, राइट। तो यहाँ हम हाइट की वैल्यू रख सकते हैं। लेट मी राइट इट फॉर यू अगेन। 6 इंटू √3/4, ए की जगह हम लिख सकते हैं 2r², राइट, एंड मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू √2/3r। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो योर आंसर इज गोइंग टू बी 24√2r³. Okay, and that is your option number 1. So your answer for this question is going to be A. I hope you understood it well. Best of luck.